हेडलाइन के बाद आंध्र प्रदेश की खबरें तफसील के साथ। पीआरसी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन की जानिब से शुरू करदा जंजीरी भूख हड़ताल आज दूसरे दिन में दाखिल हो गई है। रियासत भर में तकरीबन 13 लाख से जायद मुलाजमीन हड़ताल में शामिल हैं। एहतजाजी मुलाजमीन पीआरसी का जीओ वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने पर बजिद हैं। मुलाजमीन का कहना है कि वो हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर हुकूमत मुतालबात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि मौजूदा पीआरसी की वजह से मुलाजमीन और पेंशनर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। Total of nearly about 13 lakhs employees, teachers and workers are on the station in the state of Andhra Pradesh, demanding for a settlement of a progressive pay revision instead of a reversal pay revision. As on today, the government has given a reversal pay revision which is resulting in recovery of nearing from 50,000 to 3 lakh rupees to each individual employee and the pensioner. This never happened in the history of India in any state. The first time it is happening in Andhra Pradesh. The government has to think positively that any pay revision should give some hike to the employees instead of making recovery from the employees. So another aspect is government is also in total confusion what pay revision they want to implement, whether they want to implement in total the Central Pay Commission, or they want to implement the state appointed Ashutosh Mishra Commission, or they want to implement the Secretaries Committee. Government is mixing all the three and taking one aspect from one report, one aspect from one report and mixing it and implementing it in which are advantageous to government and causing loss to the employees. So that's why we are demanding the government to first come to some clarity and then negotiate with the employees associations for the effective implementation. पीआरसी के खिलाफ मुलाजमीन की जानिब से शुरू करदा एहतजाज को बाएं बाजू की जमातों ने भी अपनी तायद का ऐलान किया है। सीपीआई सीपीएम लीडरों की जानिब से विजयवाड़ा के दासरी भवन में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान हुकूमत की जानिब से जारी करदा पीआरसी जीओ और मुलाजमीन के एहतजाज पर तबादले ख्याल किया गया। बाएं बाजू लीडरों ने कहा कि मौजूदा पीआरसी मुलाजमीन के खिलाफ है, इसको बर्खास्त करते हुए पीआरसी से मुतालिक नया जीओ जारी किया जाए। Of left parties, we are all supporting the strike which is going on by the state teachers and also the government employees. Because of the negligence of the state government, particularly the chief minister, he betrayed the employees by announcing 23% fifth-month allowance. Because earlier he declared 27% as interim relief, whereas now he has decreased it to the 23%. And also he reduced the HRA also. So the आरटीसी मुलाजमीन ने भी पीआरसी के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया है। विजयवाड़ा के गांधी नगर प्रेस क्लब में तमाम आरटीसी मुलाजमीन जेएसी लीडरों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान 7 फरवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का फैसला लिया गया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि मौजूदा पीआरसी उन्हें कबूल नहीं। आशुतोष मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने का इस मौके पर हुकूमत से मुतालबा किया गया। Recommends is revision to Government of Andhra Pradesh employees secretary committee report given, but actually original Ashutosh Mishra committee not given to government employees and it is in not available in public domain. We are demanding original Ashutosh Mishra committee report to public domain. Government of Andhra Pradesh decided to implement Government of India standards on working class, raising working hours, curtailing almost all subsidies and allowances. इंतजामिया को बेहतर और शफाफ बनाने के लिए ही रियासत में नए अजला का क़याम अमल में लाया गया है। प्रजा संकल्प यात्रा में वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। पानीम रुकन असेंबली ने करनूल में ये बात कही। नए अजला के क़याम पर वजीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए करनूल में रैली निकाली गई। वाईएसआर लीडरों और कारकुनों की जानिब से जिला परिषद दफ्तर तक मुजस्समा वाईएसआर तक रैली निकाली गई। वाईएसआर पार्टी के अरकान असेंबली ने आनजहानी वजीर आला वाईएसआर के मुजस्समे को दूध से नहलाया और वजीर आला जगन मोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया।
वहीं आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से कोडोमोर हलके में फ्री मेडिकल कैंप रखा गया। फ्री मेडिकल कैंप से 100 से ज़ायद मरीजों ने इस्तेफादा किया। मुख्तलिफ माहिरीन अमराज ने मरीजों की मुफ्त में तशखीस की। मरीजों में अद्वियात भी तकसीम किए गए। तंजीम के रुकन डॉक्टर सरफराज ने कहा कि यूनानी इलाज को आम करने के लिए ही इस तरह के फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं ताकि आवाम को यूनानी इलाज से मुतालिक जानकारी दी जा सके। एसोसिएशन की जानिब से बाशा नर्सिंग होम में एक मुफ्त यूनानी मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें 110 से ज़ायद मरीज इस्तेफादा हासिल करे और एसोसिएशन के सदर डॉक्टर शाकिर अहमद साहब, जिनका ये बाशा नर्सिंग होम है कोडुंगुर में, वहीं पे एक कैंप मुनक्किद किया गया। और इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दीकी साहब और डॉक्टर सईद हसन साहब और जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर दिलावर बेग और मैं जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सरफराज नवाज और ईसी मेंबर्स फयाजुद्दीन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और जीएमडी मुनव्वर और डी मोइन अहमद। हज़रत ख्वाजा सैयद शाह पीर मोहम्मद अल हुसैनी चिश्ती की आज ज़ियारत और फातिहा खानी हुई। ज़ियारत और फातिहा खानी में मुल्क भर के मुरीदीन ने शिरकत की। इस दौरान सैयद शाह मोहम्मद अल हुसैनी चिश्ती की मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। विजयवाड़ा में 11 और 12 फरवरी को मुनक्किद होने वाले एक प्रोग्राम के सिलसिले के हवाले से नायब वज़ीर आला ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर कोरोना गाइडलाइंस के हवाले से भी उन्होंने बात की। उर्स का एहतमाम किया जाएगा। इस हवाले से कैलेंडर जारी होने की भी बात कही गई। कोंडापल्ली शाह के हवाले से ये उर्स का इनेकाद किया जाना है। कोंडापल्ली दरगाह के उर्स के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तर सहूलियात फराहम की गई हैं। उर्स के पेश नज़र नायब वज़ीर आला अमजद पाशा के हाथों पोस्टर भी जारी किया गया। इस मौके पर सज्जादा नशीं व दीगर भी मौजूद रहे। नायब वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक उर्स तक़रीब का आगाज़ होगा। इन्होंने 425वां उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाने की बात कही। कैलेंडर की रस्म इजरा तक़रीब में वाईसीपी माइनॉरिटी लीडर रफ़ी के अलावा JMC बाबू, सिराज रामकृष्णा और श्रीनु व दीगर मौजूद रहे। ఫిబ్రవరి నెల 11వ తేదీ కొండపల్లిలో జరగబోతుంది. మరి ఉర్స్ మహోత్సవ సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు కొండపల్లి బాబాను దర్శించేదానికోసం రావడం జరుగుతుంది. మరి వాళ్ళకందరికి కూడా ప్రతి ఒక్కరు భక్తులు కూడా ఎంతో విశ్వాసం ఆ దర్గా పైన ఉంది కాబట్టి చాలామంది భక్తులు అక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా మన కొండపల్లి బాబా గారు కూడా నిజంగా అక్కడ వచ్చే భక్తాదులకు అందరికి కూడా అనేక సౌకర్యాలు కల్పించడం జరుగుతుంది. మరి వేలాది మందికి అన్నదాన కార్యక్రమాలు అయితే మరి అన్నీ కూడా అక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మరి ఉర్స్